Good morning, everyone. So, yesterday we started exercise 6.1 in the chapter 6 linear equations. Okay, Viren, you will tell me what is a linear equation? Okay, equation is the mathematical statement which equate two quantities, and linear equation is that equation in which the highest power of variable is one only. Okay, so let me start question number 3, E part. Okay, what you have to do in this question, I told you yesterday also, you have to just put the value of this variable in the given equation. Okay, this is the value of this variable. X square is equals to 25 is the equation, and x is equals to minus 5 is the value given of this variable. So you have to check whether this value of the variable satisfies this equation or not. आपको ये चेक करना है कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है. इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाने चाहिए. ठीक है, सो पुटिंग x is equals to -5 in the equation. ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन में लिख रहे हैं. बेटा इक्वेशन को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं ई क्यू और उसके ऊपर एन, उसकी पावर में क्या बनाते हैं, एन बनाते हैं. ठीक है, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है लिखने का, ये ई क्यू और उसके ऊपर एन. ओके, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. एक्स लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स. Okay, this is right hand side. 25 is the right hand side and x into x is the left hand side. Now put the value. Minus 5 into minus 5 is equals to 25. 5 5s are 25, and minus will get multiplied. It will be positive 5. So 25 is equals to 25. What have you seen here? Left hand side is equals to right hand side. Since left hand side is equals to right hand side, so x is equals to -5 satisfy the equation. ये वैल्यू क्या करती है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, satisfies the equation. Okay, so this will be the process to solve these type of questions. Okay, next is F part. What is F part? 3 minus 2x upon 2 is equals to 5. This is the given equation and the value of variable is given 5. So putting x is equals to 5 in the equation. What is left hand side? Left hand side क्या हो जाएगी? 3 minus 2x means 2 multiplied by x. So it will be 2 multiplied by 5 divided by 2 is equals to 5. 5 is the right hand side. Okay. Now solve this. 5 2s are 10 divided by 2 is equals to 5. 3 minus 10 will be what? 3 minus 10 will be what? Yes, student. -7. Very good. So it will be -7 divided by 2 is equals to 5. Can it be possible? Can it be possible? No. Yes. So left hand side and right hand side are not equal. Left hand side is not equals to right hand side. So x is equals to 5 does not satisfy the equation. Okay? मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन इट विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन. सो दिस वाज एक्सरसाइज 6.1. two parts of question number 3 I will give you today in the homework. I have written over here question number 3 A and C part. ये आपको आज के होमवर्क में करने हैं. ओके बेटा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए. दिस चैप्टर यू हैव टू डू इन सेट बी. स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज्ड. स्टूडेंट्स अब भी कंफ्यूज है कि मैम ये चैप्टर कौन से सेट में करना है. तो मैं आपको बता देती हूँ, जिन चैप्टर्स में ये जो ज्योमेट्री के डायग्राम्स होते हैं ना, ये एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल एटसेट्रा, ये सब होते हैं बेटा, वो सभी चैप्टर्स वो ज्योमेट्री का पार्ट होते हैं, एंड यू हैव टू डू दैम इन प्रोजेक्ट नोटबुक. वो प्रोजेक्ट नोटबुक में करना है. ज्योमेट्री का पार्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो फिगर्स होते हैं ना, वो हम ज्योमेट्री के मटेरियल से बनाते हैं. जैसे पेंसिल है आपका, स्केल है, कंपास, प्रोट्रैक्टर. ओके, इसलिए उसको ज्योमेट्रिकल पार्ट कहते हैं, और इसीलिए जो फिगर्स होते हैं इनका चैप्टर हमेशा हम प्रोजेक्ट नोटबुक में करते हैं. बट दिस इज द सिंपल चैप्टर, इसमें कोई फिगर नहीं है इस तरीके का. सो यू हैव टू डू इट इन सेट बी ओनली. डोंट डू दिस चैप्टर इन सेट इन प्रोजेक्ट नोटबुक.
ओके कई बच्चों ने चैप्टर 8 भी सेट बी में या सेट ए में ही कर लिया है, और मैंने स्टार्टिंग में ही अनाउंस कर दिया था कि आपको चैप्टर 8 जो ज्योमेट्री का पार्ट है प्रोजेक्ट नोटबुक में करना है। उसके बावजूद कुछ बच्चों ने उसको सिंपल नोटबुक में किया है। व्हाई इज इट सो? आप लोग अनाउंसमेंट सुनते नहीं हो क्लास में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ध्यान से? यस, जिसमें चैप्टर आपका 5 था ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर वो नोटबुक फिल नहीं हुई है तो उसी नोटबुक में कीजिए इसको, और अगर वो नोटबुक फिल हो गई है तो फिर नई नोटबुक बना लो ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर आपको प्रोजेक्ट नोटबुक में नहीं करना है। फाइन। सेकंड थिंग ये है, जिन बच्चों ने जिस डे का होमवर्क मुझे सेंड नहीं किया है चैप्टर 8 का जिस दिन का होमवर्क मुझे सेंड नहीं किया है, उनकी उस दिन की मैंने एब्सेंट मार्क कर दी है। बिकॉज इफ यू आर नॉट सेंडिंग द होमवर्क ऑफ दैट डे, इसका मतलब आप प्रेजेंट ही नहीं थे उस दिन क्लास में। ठीक है, तो जिसने जिस दिन का वर्क नहीं भेजा है मुझे, होमवर्क नहीं भेजा है, मैंने उसकी उस दिन की एब्सेंट मार्क कर दी है अपनी अटेंडेंस नोटबुक में। ठीक है, ओके। ओके, सो मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, इट्स ओके। Methods to solve linear equations. How to solve linear equations. In your book, 3 methods are given. Okay? But main method is only one, that is transposition. But हमें पढ़ने तीनों है, ठीक है? तो फर्स्ट मेथड है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। Okay? So first method is trial and error method. As you can see with its name, trial means वैल्यूज हमें रख के बार बार ट्राई करनी है, ठीक है? एंड एरर मतलब जितनी बार उस वैल्यू से गलत आंसर आएगा उतनी बार वैल्यू दोबारा पुट करनी है। हम जो आपको इक्वेशन गिवन है, जैसे यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 15 इक्वेशन गिवन है। ओके, आपको इसमें वेरिएबल x की डिफरेंट वैल्यूज रख के देखनी है, 1 से स्टार्ट करके, 1 देन 2 देन 3, फिर आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, आपको ऑलरेडी वैल्यू गिवन नहीं मिलेगी या ट्रांसपोजिशन से आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो आपको एक एक वैल्यू रख के दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इसमें 5 रख दो क्योंकि आपको पता है 3 5 जा 15, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड का। इसमें डिफरेंट वैल्यूज आपको रख के बतानी पड़ती हैं, उसके बाद में आप बताएंगे कि कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है। जिस वैल्यू से सेटिस्फाई होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए, पहले मैं वैल्यू रख रही हूँ x की 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3x, इट विल बी 3 इंटू 1 मीन्स 3। ओके, राइट हैंड साइड क्या है? 15। राइट हैंड साइड तो देखिए ऑलरेडी ऑलवेज 15 ही रहेगी, तो सभी में आप राइट हैंड साइड 15 लिख सकते हैं। ये राइट हैंड साइड का कॉलम है, तो इसमें जो भी राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लिखनी है आपको हर अटेम्प्ट के लिए। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा जिसमें हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करके लिखनी है कि कौन सी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड की क्या वैल्यू आ रही है। रिजल्ट में आपको ये लिखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है। तो क्या लिखना है? left hand side is not equals to right hand side, this will be your result. Okay, और आप यहाँ पे not satisfied भी लिख सकते हो। मैं x की वैल्यू रख रही हूँ 2, तो क्या होगा? 3 into 2, 3 2 जा 6। Again they are not equal to each other, left hand side and right hand sides are not equal। 3 अगर वैल्यू रखूंगी तो it will be 3 3 जा 9। If the value is 4 then it will be 3 4 जा 12। तो आप देख सकते हैं x की मैंने 4 वैल्यूज रखी हैं, 1 2 3 4। इनके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं, मींस दे आर नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, दीज वैल्यूज आर नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ओके, बट इफ आई पुट हेयर x is equals to 5, then what will happen? 3 into 5 is 15। now you can see 15 is equals to 15। okay, so left hand side is equals to right hand side now। okay, so what will be the answer? X is equals to 5। x is equals to 5 will be the answer because at this value the equation goes satisfied। ओके, इससे इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आप अगर चाहें पे तो इस पे यहाँ सर्कल भी लगा सकते हैं शो करने के लिए कि देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ओके, सो दिस विल बी द प्रोसेस। ये इस मेथड से इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हम। वेट बेटा,
ये आपको सिर्फ एज एन एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल एंड एरर मेथड होता क्या है। इसका ज्यादा यूज नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, दिस मेथड, नो क्वेश्चन इज गिवन इन योर एक्सरसाइजेस। आपके एक्सरसाइज में इस मेथड के लिए कोई क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज 7y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 19। ओके, सो यहाँ पे वेरिएबल है y, और वेरिएबल की y के आपको डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखनी है। तो y की वैल्यू पहले मैं 1 रख रही हूँ, तो इट विल बी 7 इंटू 1 माइनस 2, मीन्स 7 1 7, 7 माइनस 2 विल बी 5, right hand side is 19. What will be the result? Not satisfied. मैंने आपको क्या बोला, आप दोनों ही रिजल्ट लिख सकते हो, या तो जिस तरीके से हमने लास्ट एग्जांपल में लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या फिर आप ये भी लिख सकते हो नॉट सेटिस्फाइड। ओके, नाउ पुट वैल्यू y इज इक्वल्स टू 2, 7 into 2 minus 2, 7 2s are 14 and 14 minus 2 will be 12. Now they are again not equal to each other, again not satisfied. मीन्स y इज इक्वल्स टू माइनस 2 पुट अगर हम करेंगे इक्वेशन में, तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, इफ आई पुट 7 इज इक्वल्स टू 3, देन वी विल सी व्हाट विल हैपन। 7 3s are 21, 21 minus 2 will be 19. Yes, now you can see left hand side and right hand side both are equal to each other. Okay, so it means with this value of the variable the equation will be satisfied. Okay, so ये कॉलम की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कॉलम आपको इसलिए मार्क करके बताया जो कुशाग्र क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैम अगर आंसर हमारा आ गया, सेटिस्फाइड हो गया, तो उसके बाद सॉल्व करने की जरूरत है क्या? उसके बाद सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। फाइन, लेकिन नोटबुक में जरूरी नहीं है कि आप ये कॉलम बनाए ही बनाए, ठीक है। जहां पे आपका आंसर आ जाता है आप वहीं तक टेबल बनाइए सिर्फ, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर? Answer is y is equals to 3, because on this value the equation gets satisfied. Okay, now second method is balancing method. Now what is balancing method? देखिए मैंने एक statement लिखा हुआ है यहाँ पे, by making same changes on both sides of equation. मान लीजिए आपको कोई equation दी हुई है, ठीक है, तो उस इक्वेशन में आप दोनों ही तरफ, उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम चेंजेस करेंगे। चेंजेस मतलब या तो अगर आप कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऐड करना है आपको, अगर आप कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों ही साइड में सेम नंबर को, ठीक है। अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसको दोनों ही साइड्स में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर आप कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों ही साइड में सेम नंबर डिवाइड करना है। क्या कहा मैंने? और ये करना किस तरीके से चेंज? सबसे पहले तो आपको ये देखना है लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल के साथ गिवन क्या है, ठीक है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में वेरिएबल में लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है x प्लस 5, राइट हैंड साइड है 20। मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल रखना है, ओनली वेरिएबल होना चाहिए। मीन्स दिस 5 आई हैव टू रिमूव फ्रॉम हेयर, ये 5 मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो अब आप लोग बताएंगे मुझे कि इसे मैं किस तरीके से रिमूव कर सकती हूँ। सोचिए एक बार और मुझे बताइए कि हाउ कैन वी रिमूव दिस 5 फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड? व्हाट? यस, यस, यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 5 को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ अपनी तरफ से, तो ये 5 और 5 कट जाएंगे, तो ये 5 हट जाएगा। अब क्या किया मैंने? पहले तो हमें ये सोचना है कि ऐसा कौन सा मेथड अपनाया जाए। मेथड मतलब ऐसा कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए जिससे कि सिर्फ x रह जाए, ये कांस्टेंट है, ये हट जाए यहाँ से। तो उसको हटाने के लिए मैंने -5 लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ओनली x रह जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? बाय मेकिंग सेम चेंजेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया बेटा? मैंने ये -5 लाया है यहाँ पे, ये मेरा चेंज है। ये -5 जो है ना, ये चेंज है यहाँ पे। तो मुझे अगर ये चेंज मैंने लेफ्ट साइड में किया है तो यही चेंज मुझे राइट साइड में भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे -5 लिखा है तो यहाँ भी आपको -5 लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में भी। फाइन, तो इसका मतलब हुआ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे है? क्योंकि दोनों तरफ ही हम चेंज कर रहे हैं, अगर चेंज कर रहे हैं और वो सेम चेंज है, ठीक है। इफ वी आर डूइंग एनी चेंज इन द इक्वेशन then it should be happen in both the sides and the change must be same.
ठीक है। अब यहाँ पे 5 से 5 माइनस हो जाएगा तो ओनली x बचेगा, दोनों कट के 0 हो जाएंगे एंड 20 माइनस 5 विल बी 15, सो इट विल बी दी आंसर। फाइन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बैलेंसिंग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये हर हाल में इक्वेशन इक्वल होगी, हर हाल में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। और वो इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो सेम चेंजेस कर रहे हैं और दोनों ही साइड्स में कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूंगी तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा सेम चीज, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर यहाँ डिवीजन होगा तो राइट साइड में भी आपको डिवीजन करना ही पड़ेगा। ओके, तो ऐसा मत करना कि सिर्फ आप एक ही साइड में कोई भी चेंज कर रहे हो और उसकी अदर साइड को एज इट इज छोड़ रहे हो। ठीक है बेटा, इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी विद दिस वेरिएबल ओनली वन कांस्टेंट इज गिवन। सिर्फ एक ही कांस्टेंट गिवन है, तो उस कांस्टेंट को हटाने के लिए सिर्फ एक ही चेंज किया है मैंने, एक कांस्टेंट के लिए एक चेंज। लेकिन अगर दो कांस्टेंट गिवन होंगे, यहाँ पे देखो 5 और 2, दो कांस्टेंट्स गिवन है, तो आपको 2 स्टेप्स में दो अलग अलग चेंजेस करके वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए किस तरीके से। पहले ये -2 है, इसे हटाना है, और कांस्टेंट आपको हमेशा साइन के साथ लेना है, मैंने पहले भी बोला था आपको कांस्टेंट हमेशा साइन के साथ आता है। ठीक है, तो 5x एज इट इज लिख दिया, -2। अब अगर मुझे ये -2 हटाना है तो यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, क्योंकि -2 और +2 0 हो जाएगा। यहाँ मैंने अगर +2 किया है तो अदर साइड में भी +2 करना पड़ेगा। ओके, यहाँ देखिए ये 2 और ये 0 हो गया ना, 5x + 0, -2 एंड +2 कितना हो गया 0, और ये 13 + 2 कितना हो गया 15। ओके, यानी कि फाइनल क्या रहा, 5x इज इक्वल्स टू 15। अब ये देखिए, ये 5x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जिस ऑपरेशन में दिया है उसका ऑपोजिट ऑपरेशन करना है। जैसे यहाँ ये प्लस में था तो मैंने माइनस कर दिया, यहाँ ये माइनस में था तो माइनस का ऑपोजिट होता है प्लस, प्लस कर दिया। यहाँ ये 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका ऑपोजिट होता है डिवीजन, तो मुझे यहाँ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, डिवीजन, तो मुझे ये 5 रिमूव करने के लिए 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट साइड में 5 से डिवाइड किया है तो राइट साइड में भी 5 से डिवाइड करेंगे। ये 5 इससे कट हो जाएगा, बचेगा ओनली x, और 15/5 विल बी 3, सो दिस विल बी दी आंसर। ओके, इस तरीके से आपको अगर एक से ज्यादा कॉन्स्टेंट्स गिवन होंगे तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको वो कॉन्स्टेंट्स हटाने हैं। ठीक है, पहले -2 था तो उसका ऑपोजिट ऑपरेशन करके मैंने उसको रिमूव कर दिया, 0 में कन्वर्ट कर दिया। फिर 5 मल्टीप्लीकेशन था तो उसका ऑपोजिट ऑपरेशन करके उनको आपस में कट कर दिया, और यही चेंजेस मैंने राइट साइड में भी किए। पहले +2 किया, फिर डिवाइडेड बाय 5 किया, तो आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 3। ओके, so now the next example is x/4 - 2 is equals to 3. So first of all we have to remove this -2 from here. ये -2 मुझे रिमूव करने के लिए क्या किया मैंने, x/4 तो एज इट इज लिख दिया, -2 भी एज इट इज लिख दिया। अब अगर मैं इसे -2 को मुझे रिमूव करना है तो +2 लगाना पड़ेगा इसके साथ। माइनस का ऑपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, प्लस, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही आएगा। अगर मैंने यहाँ 2 को ऐड किया है तो राइट हैंड साइड में भी मुझे 2 ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ओनली x/4, ये -2 एंड 2 आपस में कट हो गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 3 + 2 इज 5। ओके, नाउ आई हैव टू रिमूव दिस 4। अब ये देखिए, ये 4 यहाँ डिवीजन में है, 4 किस में है, डिवीजन में है, तो आपको यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 डिवीजन में है, डिवीजन का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 4 आएगा। जो नंबर है वो नंबर तो एज इट इज आएगा, बस ऑपरेशन ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर 2 था तो मैंने यहाँ भी नंबर 2 ही लिखा है, लेकिन माइनस की जगह प्लस कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन में 4 है तो मल्टीप्लाई में भी 4 ही आएगा। अब अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। 4 से 4 कट हो जाएगा तो बचेगा ओनली x, एंड x इज इक्वल्स टू 20, सो दिस विल बी दी आंसर। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा आपके। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड में व्हाट वी हैव टू डू, ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन चेंज कर देना।
ओके। एक्सरसाइज में मेनली आपको ट्रांसपोजिशन यूज करना है, मेनली जो है वो ट्रांसपोजिशन है, लेकिन आप बैलेंसिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है, ट्रांस मतलब एक्सचेंज करना और पोजिशन मतलब पोजिशन। पोजिशन एक्सचेंज करनी है, किसकी एक्सचेंज करनी है, जो भी टर्म्स आपको इक्वेशन में गिवन है। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करने से मतलब उसकी साइड चेंज करनी है, शिफ्ट करना है। तो क्या करते हैं ट्रांसपोजिशन में, shift the term from one side to the other side, okay। या तो आप किसी भी टर्म को लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, या फिर उसको राइट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, जो नॉर्मली आज तक आप क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आज तक जो हम मेथड करते आए हैं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो ट्रांसपोजिशन मेथड भी है। यस, वो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, जो भी आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो शिफ्ट द टर्म फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, इसीलिए मैंने टर्म लिखा है यहाँ पे। उस टर्म में कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। सो ऑन शिफ्टिंग द टर्म, जब हम टर्म शिफ्ट करेंगे तो उनके ऑपरेशन में क्या चेंजेस आते हैं, देयर ऑपरेशंस चेंजेस। टर्न ऑफ योर स्पीकर। जब भी हम किसी टर्म के साइड को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके ऑपरेशन में चेंज आ जाता है। जो प्लस साइन है वो माइनस साइन में चेंज हो जाता है, माइनस साइन प्लस में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, और डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगर हम एक नंबर को लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं और वो लेफ्ट साइड में प्लस का है, तो राइट साइड में आके माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से सभी ऑपरेशन उनके ऑपोजिट ऑपरेशंस में चेंज हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देती हूँ। एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। देखिए, एग्जाम्पल देखिए, सॉल्व किस तरीके से करना है। x प्लस 7 इज इक्वल टू 20, मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। x प्लस 7 इज इक्वल टू 20, ओके। सो शिफ्ट क्या करेंगे, कांस्टेंट को शिफ्ट करना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में मुझे सिर्फ वेरिएबल रखना है। ये वेरिएबल x है, ये एज इट इज रहेगा, जो आज तक आप करते आए हैं सेम वही करना है। 20 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। ये जो प्लस 7 है, ये लेफ्ट साइड में है, उसे मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ, यहाँ आ गया। और प्लस साइन किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, तो इट विल बी -7। सो x की वैल्यू आ जाएगी 13, ओके। इस तरीके से ये होंगे। देखिए, एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको। 15x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको, तो इसमें क्या करना है, 15x तो एज इट इज रहेगा, ये 5 उधर शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा, तो 15x कितना हो जाएगा, 10। ये 5 मैंने लेफ्ट से राइट साइड में शिफ्ट किया, तो ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया, और 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10। अब ये 15 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाता है, डिवीजन में। तो ये 10 के डिवीजन में आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 15। और अगर आप इसे 5 से ऊपर नीचे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। इट मीन्स स्टार्टिंग से लेके अब तक जो आप मेथड करते आए हैं, वो मेथड हम ट्रांसपोजिशन मेथड करते थे, और यही वो मेथड है जिसमें हम टर्म्स को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड में, और उनके ऑपरेशंस चेंज हो जाते हैं, ओके। सो दिस वाज योर क्लास वर्क। योर होमवर्क फॉर टुडे इज exercise 6.1 question number 3a and c part on page number 115, okay। Thank you class.